آپ یہ بتائیے سر، میں اب آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں. جی ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے یہ 73 ایئرز میں کبھی کوئی اچھا الیکشن ہوا ہی نہیں؟ ایک ہوا ہے نا، پوری دنیا اس کو مانتی ہے. نہیں، وہ کیوں ہوا 1971 کا؟ جی 70 کا الیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا. ہاں. اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا جنرل شیر علی، اور جرنیل تھا یحییٰ خان. اور یحییٰ خان. میں آپ کو بتاتا ہوں، یحییٰ خان کوئی ڈیموکریٹ نہیں تھا. یحییٰ خان نے کہا کہ یہ جو سب بکواس پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے تو تباہ کر دینا ہے ملک کو. بالکل. تو میرا کم سے کم ڈنڈا اس وقت ہونا ہاں چاہیے. بالکل. تو الیکشن تم کر رہے ہو تو ٹھیک کرو، ٹھیک سے کرو. بالکل. ہاں، اور ہو گیا نا ٹھیک. ہم تو نہیں کھڑے ہو سکتے، مگر وہ لوگ آئیں جو ہمارے کہنے پہ چلے. تو اس نے کہا کہ سر دیکھیے کیا کہا اس نے کہا آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے. ان میں آپس میں یہ کافی، آپس میں اتنا یہ ہے کہ یہ جو ممتاز دولتانہ کا ٹولہ آئے گا اس کو ہم خرید لیں گے، بھٹو کا آئے گا اس کو کریں گے، فلانے نہیں. آپ تو سروس میں تھے سر. جی بالکل. آپ مجھے بتائیے وہ پاکستان کا فیئرسٹ الیکشن. ہاں اٹ واز فیئر بٹ اونلی بیکاز بٹ ان کو ضرورت نہیں تھی. ریزلٹس ور ناٹ ایکسیپٹڈ. نہیں، ضرورت نہیں تھی کہ ان کو انفیئر ہو. ہاں. مگر ہوا یہ کہ جب الیکشن ریزلٹس آ گئے تو ہر سیٹ مجیب الرحمان اس پاکستان میں جیت گیا اور 2/3 ادھر. اچھا چلیے ہو گیا نا. اگر فیڈرل ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہوتا. وہ ایک ٹریجڈی ہو گئی، ہم نے نہیں مانا سر. اس کے بعد کیا ویسٹ پاکستان میں دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وائی ناٹ ہونا چاہیے تھا نا. آئی ایگری. کیا وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 50 سال بعد آئی ہے، کیا اس وقت آ جاتی تو بھٹو صاحب جیت سکتے تھے؟ نہیں، مگر بھٹو نے الیکشن رپورٹ کو نہیں چاہتا تھا کہ پرنٹ ہو. بھٹو کے نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بھی تو کہیں کچھ ہے نا سر، ان کو بھی چاہیے تھا. ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. آئی تھنک سو، یس. The basis تو یعنی یہ طے ہو گیا کہ پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہوا ہے جو ایک جرنیل نے کرایا. وہ جرنیل کا ذاتی کیریکٹر کو چھوڑیں، لیکن اس پر ذاتی نہیں چھوڑ دیں. وہ جنرل نے اس لیے کرایا تھا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی فیڈل کرنے کی. اس کے انٹیلیجنس اور سب لوگوں نے بتا دیا. He was not power hungry. نہیں، وہ ہر بہت چیز. He was hungry for everything. But not for power. No, he was hungry for power. اس نے اس لیے کہا، اس نے کہا کہ یار یہ سب بٹے ہوں گے اور میں پھر کہوں گا بھٹو تم اس کے ساتھ دے جا کے گورنمنٹ بنا سکتے ہو، تمہارے کہنے پہ نہیں آ رہا ہے. میرے 100% غلط. نہیں، وہ ایبسلیوٹلی یحییٰ خان کا پورا یہ تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے فڈل کرنا، یہ خود بٹے ہوئے. اور وہ اس وقت ایک لیڈرشپ ایسی ایوالو ہو گئی تھی لائک عمران خان کی، جیسے ابھی لوگوں نے دیکھا کہ عمران نے وہ بھٹو کی بھی وہ آپ میں ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے، لیکن میں ٹھیک ٹھاک میچور آدمی تھا اس وقت. میں کوئی 30 سال کا تھا. وہ ینگ لوگ اس کے ساتھ بہت تھے. آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نہیں، آئی واز ان گورنمنٹ سروس. اس میں بھٹو میں بہت ساری چیزیں تھیں. یحییٰ خان did not want. جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی فڈل کرنے تو کیوں آ کے بھاندی کرے؟ نہیں کیا. مگر وجہ تھا تو کوئی الیکشن پاکستان میں آج تک فیئر نہیں ہوا ہے. اگلا الیکشن اس کے بعد تو کیا ابھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا جنرل ہمارے پاس اور ایک ایسا جج سپریم کورٹ کا سرونگ آئے جو اپنی سبارڈینیشن میں وہ پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو ہوئے الیکشنز، جو یہ کیا یہ کنٹونمنٹ بورڈ، یہ آپ کے خیال میں مینیپولیٹڈ تھی کہ فیئر تھی؟ میرا خیال ہے یہ مینیپولیٹڈ نہیں تھے. چلیے کہتے ہیں پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں مینیپولیٹڈ نہیں تھے اس لیے. مگر بٹ ہو از ایٹ فالٹ؟ مینیپولیٹڈ نہیں تھے تو جنہوں نے ووٹ دیا یہ جانتے ہوئے کہ کرپٹ لوگ ہیں. آپ کی الیکٹریٹ کرپٹ ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کے لوگ چور ہیں تو دے ڈیزرو دس کائنڈ آف لیڈرشپ. وہ تو الگ بات ہے نا جی، whether they deserve it. ہم چاہتے ہیں پاکستان چلے اور آرام. ہم چاہتے ہیں نا سر، جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کس کو ووٹ دینا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ یہ کرمنل انٹرپرائز ہے. یس، کرمنل انٹرپرائز ہے. ویری کریکٹ ٹرمینالوجی یو ہیو یوزڈ سر. ایک آدمی بھگوڑا ہے. ہاں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بھگوڑا ہے. آپ اسی کے پارٹی اور اسی کی لیڈرشپ پہ ووٹ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب کیا کہ یا تو وہ سپریم کورٹ آپ کا بکواس ہے
یعنی آپ کورٹس میٹر نہیں کر رہی نا پھر اس کا. نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا, نہیں تو کوئی تو نہیں آ کے کہہ سکتا کہ میں نے چور کو ووٹ تو اب دیا. اس کا نتیجہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا ہوگا سر, یہ کیسے چلے یہ معاملہ, یہ کدھر جا کے سیٹل ہوگا, یہ جو اب چل رہا ہے جس پہ آپ بھی بات کر رہے ہیں, جس پہ ایک ہفتے سے کنٹینیوسلی میڈیا از آن ووٹنگ مشین. اور میں تو اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پھر باداندی کر کے وداؤٹ یہ کریں اور یا یہ پی 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 اور یہ نون آ جائے تو یہ ملک کا تباہ ہے. This country will be a gone case, I think again. Yes. دیکھیے ایک فیلڈ اسٹیٹ پھر ہو جائے گا, اس لیے کہ ایسا نہیں چل سکتا. اور اگر ایک آدمی جو تھوڑا سا ان سے زیادہ ایماندار اور یہ تھا, اس کو آپ ڈیلیبریٹلی ووٹ نہ دیں اور چوروں کو, اسٹیبلش تھیوز کو ووٹ دیں, تو میں آئی ایم سوری, تو پھر آپ چوروں کا ایک اڈا ہے. اب چوروں کا اڈا کب تک چلتا ہے مجھے نہیں پتا, مگر اٹ کانٹ لاسٹ فار ایور. دیکھیے معاف کریے, if I may conclude, آپ ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں ہے. لوگ تو ہمیں ان نیچرل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں نا. You are not a historical state. You are a creation of partition. ٹھیک ہے. Yugoslavia was a creation of World War I. Soviet Union was a creation of World War II and I and II. تو جب وقت آیا ٹوٹ گئے. ہاں جی. جب ٹیٹو گیا ٹوٹ گئے, تو جو لیڈر ہے, ہاں جی, تو the leadership counts. اگر لیڈر آپ کا اچھا ہے آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ابھی تھوڑا سا ہم ٹاپک سے سر ہٹیں گے, لیکن یہ میں بہت دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کس سے یہ کویسچن کروں. بہت لوگ کہتے تھے, میں نے اپنے والد سے کئی دفعہ پوچھا, ہمیشہ سنا ہم نے کہ پاکستان اور اسرائیل آر ٹو ان نیچرل اسٹیٹس, کہ دونوں ریلیجن کی بنیاد پر بنے تھے, تو وائی دے آر سروائیونگ, وائی وی آر ناٹ. وزڈم آف دیئر لیڈرز, اوکے, وزڈم آف دیئر, اور ان کا جو سپورٹ ہے, ان کی گڈ لک یہ ہے. دیکھیے وائی ڈیڈ یوگوسلاویا فیل, 5 ملک ہو گئے نا, سربیا, ہرزگوینیا, کرویشیا, بوسنیا. ٹیٹو آپ کے خیال میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے؟ ٹیٹو kept them together. یس, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں. ہمارے لیڈرشپ ہیز بین اے بیڈ لیڈرشپ. کیا ضرورت تھا جو ہوا ہے اس پاکستان میں, جی خدا کے بندے بنے. لیکن سر انہوں نے بڑا رائے, دیکھیں انہوں نے کیا, ان کی اکانومی کیسے گئی, ان کی پاپولیشن کیسے نیچے آئی, ان کے جو انہوں نے اپنی غلطیاں صحیح کیں, انہوں نے جو یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز میں ڈاکٹر یونس والا آپ دیکھیے, پھر یہ جو ان کا الیکٹرل سسٹم جو ہے, الیکٹرل کالج انہوں نے کیسا بنایا اپنا, جو بنگلہ دیش پتہ نہیں ادھر بھی تو بہت دھاندلی ہو رہی ہے. نہیں وہ دیکھیں ان کے یہاں بھی کچھ عرصے چلا. فائدہ کیا اگر آپ دھاندلی پر دیکھیں کچھ لوگوں نے جیسے مجیب کی بیٹی کو ووٹ دینا شروع کیا, وہ ایک کرٹسی ووٹ تھا, یا حسینہ واجد کا جو بھی, جیسے ادھر بھٹو کا کرٹسی ووٹ تھا. آپ لوگ جا کے انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں, مودی کیا کیا ہے, 2 منٹ میں آ کے انڈیا کو تباہ کر دیا, تباہ کر سسٹم کو. اندرا گاندھی نے جب ایمرجنسی امپوز کیا تھا, کیوں کیا تھا, واز اٹ ڈیموکریٹک؟ آف کورس ناٹ. ایگزیکٹلی, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ, یہ لیڈرشپ جب آپ کی بری آتی ہے تو آپ تباہ ہو جاتے ہیں. انڈیا بریک اپ ایٹ اینی ٹائم. تو وائی ڈونٹ وی چینج دا سسٹم, ہم نظام کیوں نہیں بدلتے, سسٹم چینج کر لیں. دیکھیے ہمارے خرچے کم ہو جائیں گے سر, اگر ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لاتے ہیں تو یہ جو پرائم منسٹر اور صدر کے سیکریٹریٹ اور ہاؤسز کے خرچے کم ہوں گے, اسٹاف کا خرچہ, اسٹیبلشمنٹ چارجز کم ہو جائیں گے. آپ کا نیشنل فگر کون ہوگا؟ پریزیڈنٹ ہوگا. نہیں, آپ ایک ملٹری آدمی کو لا کے کہتے ہیں کہ میں اس کو پریزیڈنٹ بنا سکتا ہوں. ناٹ, یہ دیکھیے یہ نہیں چلے گا معاملہ, اس لیے کہ جو جدھر سے بھی وہ آئے گا اس جگہ کا ووٹ لے لے گا, باقی ووٹ نہیں ملیں گے اس کو. لوگ کہیں گے why the hell should I vote for a سندھی پریزیڈنٹ. سر لوکل گورنمنٹ سسٹم میں آپ کا الیکٹرل کالج بڑا ہو جاتا ہے, انسٹیڈ آف 342 اچھا چلیے آپ کا 342 پہ چلا جائے گا الیکٹرل کالج, زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی. وہ آدمی 3,42,000 لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا جو آپ کا پریزیڈنٹ ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ 342 لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہو یہ اسمبلی میں. سر یہ ایسے بھی تو دیکھیں, یونیفائڈ گورنمنٹ جب ہوتی ہے ایک ملک میں جدھر پروونسز کافی سپریٹ ہیں, تو ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ آدمی اگنور کر رہے ہیں,
और जब 18th अमेंडमेंट होता है तो फिर वो डेंजर ये होता है कि भाई एजुकेशन को भी जब आपने प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दें तो एक दिन आएगा जब सिंध कहेगा मैं रिकग्नाइज नहीं करता डिग्री पेशावर का। एग्जैक्टली ज़फ़र हिलाली साहब, एक चीज़ जो सब लोगों को पिंच कर रही है कि ये 18th अमेंडमेंट आम आदमी को तो पता ही नहीं था, जब टीवी के टॉक शोज़ होते हैं तो तब पता चलता है ये क्या है। व्हाट इज़ दिस 18th अमेंडमेंट और इसके एडवांटेजेस क्या हुए और डिसएडवांटेजेस क्या हुए, पहले आप बताइए, फिर अगर आप समझते हैं कि मेरा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो मैं आपसे बात करूँगी इस पर। ऑब्जेक्टिव ये था कि हर प्रोविंस को एक किस्म का सेल्फ रूल हो, ठीक है, माने उस प्रोविंस का डेवलपमेंट मेजर डिसीजंस उन लोगों में हो जो वो उस प्रोविंस के हैं, को बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग करते हैं, सो दैट के जो भी वो करें, सन ऑफ द सॉइल्स और द नॉन इमिग्रेंट, नहीं वो नहीं, जो सिंध में रहता है वो सिंधी है, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता है, एग्जैक्टली, वो किधर से भी आया हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सिंध में है वो सिंधी बिल्कुल है, बिल्कुल, एंड वो इंक्लूडिंग कराची सर, यस इंक्लूडिंग कराची एज इट हैपन, और वो इलेक्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एक आइडिया तो बड़ा अच्छा है, मगर जब सब्जेक्ट्स पे आके वो डिलिनेट करने लगे तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, मान लिया उन्होंने फॉरेन पॉलिसी नेशनल है, मान लिया उन्होंने कि इंटीरियर डिफेंस और डिफेंस एंड करेंसी कम्युनिकेशंस कुछ ऐसे फाइनेंस डिफेंस, मगर जब उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ हैं जो होना था मेरे ख्याल में फेडरेशन का, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इरिगेशन एंड परहैप्स हेल्थ आल्सो हेल्थ, ये अगर उधर होता तो फिर मेरे ख्याल में मिक्स कुछ बेहतर होता, शायद अभी भी हो। चेक एंड बैलेंस में आसानी होती ना, आप जितना पैसा प्रोविंस को दे रहे हैं, इफ़ देयर इज़ नोबडी टू ऑडिट, इफ़ देयर इज़ नोबडी टू हैव अ चेक एंड बैलेंस कि मैंने तुमको 10 रुपए दिए किधर खर्च किए, आप नहीं पूछ सकते, हमारा पैसा हम जिधर चाहे खर्च तो करें। AGPR एक है ना, अकाउंटेंट जनरल ऑफ नहीं, पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, ऑडिट एंड अकाउंट्स, वो ऑडिट, वो कमेटी बनती है एक पार्लियामेंट में, वो पता नहीं वो क्या, पार्लियामेंट की कमेटीज तो वो क्या, वो तो ऑब्जेक्टिव, वो क्या कहते हैं, वो तो पार्टीज पे बिलोंग करते हैं जी, ना, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना उसमें। सरदारी के वाले साहब जो थे वो थे एक ज़माने में जी, बिफोर द 18th जी, अमेंडमेंट, वो तो कंप्लीट होक्स। मेरे ख्याल में कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ऑडिटर्स शुड ऑलवेज हैव बीन पार्ट ऑफ द फेडरेशन। यस, ठीक है, कुछ हेड्स ऐसे हैं हमारे और हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। यस यस यस, अच्छा। दूसरे, जब आपको ये मालूम था कि इधर का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, जैसे आपने बात की, फिर उनको एजुकेशन देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। नहीं, एजुकेशन देने में वैसे भी जस्टिफिकेशन नहीं था बिफोर परफॉर्मेंस, इसलिए कि एक मुल्क और एक अगर सिस्टम है तो दे शुड बी वन हेड, यू कांट हैव 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज ट्राइंग टू वर्क द सेम सिस्टम, इट डजंट मेक सेंस। लेकिन उस 18th अमेंडमेंट के बाद से ना डेवलपमेंट हुआ, ना एजुकेशन में कुछ डिलीवरी हुई, ना हेल्थ, एक जना हॉस्पिटल था वो भी सिंध को डिटेरिएशन हो गई। एंड व्हाट अबाउट इलेक्शन कमीशन, ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद, मैंने तो कहा था, ARY पर ये थे, डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम था, एंड फर्स्ट टाइम आई वाज अ सर्विंग ऑफिसर एट दैट टाइम, एंड आई सेड यू आर फिनिश्ड, इलेक्शन कमीशन इज़ फिनिश्ड आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जब आपने मिलकर ये घपला कर लिया कि 2 मेंबर तुम्हारे होंगे, 2 मेंबर हमारे होंगे, 4 मेंबर्स का आप इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं, जो 2 एक पार्टी के हैं, 2 दूसरी पार्टी के हैं, और वो जो एक वोट होता था इलेक्शन कमीशन का, वो एक नहीं रहा, अभी 5 वोट हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2-2 मेंबर्स, और जिधर 3 चले जाते हैं आपका वेट उधर ही चला जाता है। दूसरी बात ये है कि जितने इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं जी, कुछ हद तक तो आप बेहतर जानती हैं, मगर वो टीचर्स को भी सबऑर्डिनेट, वो अलग स्टाफ है, वो पोलिंग स्टाफ होता है, वो हम बाहर से हायर करते हैं हमेशा, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ना। जी, पोलिंग स्टाफ तो सारा हमेशा बैंक से धांधली करते हैं तो आप उनको
उनकी धांधली को रोका जा सकता है. देखिए सर, ये एक और कॉन्सेप्ट है, चूँकि मेरी ये ड्यूटी है, मैं आपको क्लियर कर दूं. देखिए, पूरा जो कहा जाता है इलेक्शन में बेईमानी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द ओनली स्टेक होल्डर ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली, जिसको आप पटवारी इलेक्शन कहा जाता है ना, पटवारी, SHO, DC पार्टी के होते हैं. हाँ, होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं. हो गया है ना, हो गया ना. तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि आप फिर कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन धांधली कराता है. नो, इलेक्शन कमीशन धांधली उस वक्त करा सकता है जब आप होल सोल उसको ये इख्तियार दें कि स्टाफ भी वो हायर करेगा. जैसे ये इमरान खान साहब के दिनों में हुआ था 13 के इलेक्शन में. हमने कहा मैंने ट्रेंड किए थे, UNDP ने पैसा दिया था, हमने अपने ROs एंड DROs, डेप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर, जो हम सेशन जजेस लेते हैं लोअर कोर्ट से, और वही बेईमानियाँ कराते हैं, वही करते हैं बेईमानी. तो हमने कहा था इलेक्शन कमीशन के कंधे पे ये जिम्मेदारी रहने दो. हारे तो भी हमारी जिम्मेदारी, ख़राब इलेक्शन हो तभी हम, अच्छी हो तो भी हमारी. लेकिन जब इलेक्शन ख़राब हो जाता है तो हर एक कहता है इसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है. तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है उसका? उसका सोल्यूशन ये, जस्टिस नईमुद्दीन के दिनों में ये हमने कर लिया था कि अब बाहर से कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सब कुछ, और जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे. हमें मैजिस्ट्रियल पावर्स देंगे अपने इलेक्शन ऑफिसर्स को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेसिकली इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. रिक्रूटमेंट कैसा होता है इलेक्शन कमीशन? हाँ, इलेक्शन कमीशन में ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स हैं, रैंक्स ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर. कुछ मेरे जैसे सिविल सर्वेंट्स भी जाते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटीज होते हैं. इस वक्त आज सिंध में 30 लाख पे आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, 60-70 लाख पे DCP बन सकते बिल्कुल, हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और 7 लाख के कांस्टेबल का ये बिकते हैं. हाँ, ये तो पोस्टें बिकती हैं ना. इसका जवाब देना, दिस इज ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है जी, प्लीज बिल्कुल अंडरस्टैंड. बिल्कुल है, लेकिन आप इलेक्शन जायज तरीके से पैसे लेते हैं. हाँ, यू विल नॉट बिकम लीगल ब्राइब होगी. ठीक, आप देखिए सर, इसमें यही है कि जब ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लाइक सर्विसेज ट्राइब्यूनल, लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी प्लीज़ इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए. फिर आप अच्छे लगते हैं इलेक्शन कमीशन को अच्छा या बुरा कहते हुए. तो अपॉइंटमेंट से बदले, जिस तरीका नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज करें, सर्विस स्ट्रक्चर चेंज करें. जैसे भुट्टो साहब ने जियाले भर्ती कर दिए थे सारे, ठीक है, उसके बाद ये चल पड़ी रस्म. फिर मुस्लिम लीग जब बढ़ गई, नून और काफ और फलाना और ढिमका, तो फिर उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार किया और अपने लोग भर्ती कराने शुरू किए. लेटरल एंट्री, जिसको आप लेटरिन एंट्री कहते हैं, सॉरी मैं बताती हूँ सबको कि हिलाली साहब सबसे अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इसके लिए. आई एम विटनेस टू लेटरिन. यस, वी आर विटनेस इन सिंध गवर्नमेंट. व्हेन आई वाज इन सिंध गवर्नमेंट मीटिंग्स पे होता था जी, बिल्कुल. हम तुम्हारे लिए 2 बकरा दिया है, तो मुझे क्या देगा, फर्स्ट सेक्रेटरी बन के चले जाओ वियतनाम. अच्छा, अब सर मैं आती हूँ अमेंडमेंट पे. 73 कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे. एंड यू वर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिस्टम. यू वर विद बेनज़ीर साहिब ऑल्सो, ठीक है सर. 93 जी, 73 अमेंडमेंट आप बात करें. 73 कॉन्स्टिट्यूशन के आज के दिन तक जितने अमेंडमेंट्स हैं, क्या वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हुई हैं या इन पॉलिटिशियंस के, पार्लियामेंटेरियंस के अपने इंटरेस्ट में की गई? ऑल नेगोशिएटेड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस. मेरे और आपके इंटरेस्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. Their interest. They project their interest as our interest. Please understand. What's good for them is good for Pakistan. Actually, no. What's good for Pakistan, what's good for them is often terrible for Pakistan. But these are the politicians we have. अच्छा, एक टर्म सर और यूज़ की जाती है, आपने बहुत सुनी होगी. टोटल आपके वोटर्स हैं सपोज 10 करोड़ नादरा के मुताबिक, ठीक है, एलिजिबल वोटर्स. उसमें से सिर्फ 4 करोड़ अपना वोट कास्ट करते हैं. सपोज 4-5 चलें, ठीक है. 22 की बात क्यों की जाती है? मैं 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ. हाउ कैन दे क्लेम दिस? आप उन 4 करोड़, मगर है ना, वो बेचारे वोट नहीं करें, मगर सर 4 करोड़ वोटर्स में से 1 करोड़ आप लेते हैं, 2.5 करोड़ मैं लेती हूँ, तो मैं 2.5 करोड़ की नुमाइंदा हूँ, ना कि मैं 22 करोड़ की नुमाइंदा हूँ. नहीं हूँ ना. तो क्या लोगों को इस पर उठना चाहिए कि नहीं जी? और चल इवन वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप क्या कहेंगे? वो अपना वोट क्यों नहीं जाके रजिस्टर कराते? आप फिर जो आप कह रहे हैं, तो लॉजिकली तो
अगर एक इलेक्शन में 50% लोग ना वोट करें, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये ठीक भी है, कहती हूँ तो अब, फिर हाँ, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है नहीं। तो हमें, हाँ बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं हुई इस तरह, तो नहीं, तो फिर हम, बाहर के मुल्कों में भी है ना। अब ब्रिटेन में हाँ मिसाल जी, के तौर पे अगर 49% लोग वोट करें, हाँ तो एक तो द मेजॉरिटी हैज नॉट वोटेड, हाँ और उस 49% पे अगर आप मार्जिनली जीते हाँ हैं तो जी, आप तो यू सिर्फ 20% के वोट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं मगर वही वो बोल, तो कहते हैं ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो ये तो नहीं कहते कोई कि अगर वो, उनकी एक चीज़ बुरी है तो हमें ज़रूर हर एक की नहीं, बुरी चीज़ कॉपी करनी है। मैं समझता हूँ कि लोगों को वोट करने के तो फिर आप कंपलसरी करें वोट। एग्जैक्टली नाउ, ये मैं कहना चाहती थी, अच्छा हुआ आपने कह दिया और एक कि कानून वोट करें, कंपलसरी करें, और अगर 70% से ज्यादा लोग वोट नहीं किया, नो इलेक्शन, नो इलेक्शन, यस, और पनिशमेंट फिर डिसाइड कर, कराओ, हाँ फिर करो। कंपलसरी करें, अगर कोई नहीं जाता है ये वोट हो करने, सकता है आपके ख्याल में? हर चीज हो सकती है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ आप मार के वे। निकालेंगे घर से उनको? नहीं, हमें उनको इंसेंटिव, जैसे बांग्लादेश मॉडल में हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है, इलेक्शन इज फॉर यू, नहीं, आप if you पाओ, can do it, lovely, lovely. मैं नहीं समझता होगा, मगर अगर आप कर वो तो सकते सर हैं, ये तो आइडियल सिचुएशन wonderful. है ना सर, आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये हो सकती है ना सर। मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक आप लोगों को बांग्लादेश सिस्टम से घर से निकाल के वोट करवा सकते हैं। मैं अगर उनको मानता ये हूं, चॉइस मिले, अगर वो चॉइस मैं मिले, आपको, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा मगर लोग मैं ये आएंगे, नहीं कहता कि सब आएंगे या अक्सरियत भी आएंगे, इसलिए कि और भी फैक्टर्स होते हैं वोटर्स। सर हमने इसमें एक सर्वे किया है, अच्छा। और वो एरियाज से किया है जिनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया, लाइक लियारी। अच्छा, आप सोचें, लियारी के लिए किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान में, कराची पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट ने लियारी को कभी कराची का नुमाइंदा ही नहीं समझा, वोट के लिए यूज़ किया, भुट्टो साहब, उनकी बेटी, उनका दामाद, Correct, सब लोग, ठीक है सर। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि कराची के जो सिटीजन्स हैं, लोकल्स जो हैं, वो लियारी के लोग हैं, असल सिटीजन, एक्चुअल सिटीजन्स जो हैं वो लियारी के लोग हैं, असली। ठीक है। अभी आपने उनको थोड़ा सा मौका दिया, उनको स्पेस दी, उनकी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जाकर देखें, उनके रिजल्ट्स देखें। नहीं, मगर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह, माफ़ करिए आपको इंटरप्ट किया, जी, वैक्सीन हाँ जी, हाँ, सबकी ज़रूरत है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके अजीब से नोशंस हैं, तो गवर्नमेंट propaganda, social media, हाँ। गवर्नमेंट ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, हाँ। कि आप हाईवे पे नहीं जा सकते अगर आपके पास वैक्सीन, बहुत अच्छा की गवर्नमेंट कुछ ले आओ और हमें बताओ, ठीक है? बिल्कुल, अच्छा किया ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। अगर आप वोट को भी ऐसे करते कि जब तक आपके पास वो लाइन ना हो, फलाने दिन के बाद आपको सजा या सर्विसेज नहीं होंगे, प्लस आपका एनआईसी है, उसमें पंच कर दें, ईरान में जैसे जो है। भी, जैसे आप ईरान में कितना अच्छा सिस्टम है, आपका एनआईसी जब तक पंच नहीं हुआ होगा, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप वोट कंपलसरी करने के साथ ये भी बताएं कि कैसे होगा। आई थिंक कि हमारे मुल्क में हाँ जी, कोई एक डिटर्मिन्ड कैंपेन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, द रीज़न क्यों वोट ज़रूरी है, और उसके बाद कंपलसरी वोटिंग कौन करेगा? पॉलिटिशियन करेंगे, पार्लियामेंटेरियंस करेंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये हमें इसके लिए पैसा मिला, बहुत पैसा मिला, यूएसएड ने इतना बिलियंस। ये जी मैं आपको बताती हूँ, किस हमारे चीज़ पास के लिए पैसा मिला? वोटर अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए। ये दिस इज अवेयरनेस। वो अवेयरनेस नहीं है कि जाओ तो तुम्हारी छतरी के अगर तुमने बाहर स्टैंप लगा दी तो वोट खराब हो जाएगा। नहीं, मगर मैं कहता हूँ कंपलसरी करो। वो ऐसे ही होगा ना, आप कंपलसरी वोटिंग करें। उसमें बहुत सारे, जब ये यूएनडीपी वाले हमारे पास आते थे, इन्होंने हमें कंप्यूटराइज किया, हमें बहुत पैसा दिया। देखिए, हमेशा हमेशा अमेरिकन ख़राब नहीं होते। हम कहते हैं ना, यहूदी ने ये कर दिया, यहूदो हनूद की साजिश से ये हो गया, वो हो गया। नो, ठीक है ना? Yes, I understand. I appreciate what you're saying. जी, ठीक है ना सर? बिल्कुल। अगर वो एक अच्छे काम के लिए हमें पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, और हम उससे फैसिलिटेट होने के बजाय, अब मैं वो चूँकि हट जाएंगे, उसमें जितनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और करप्शन हुई है वो मैं जानती हूँ। और मैं एक वाइट पेपर लिख रही हूँ इलेक्शन कमीशन का, उसमें आप देख लेंगे सारा कुछ। तो आप उस पैसे से फ़ायदा क्यों नहीं उठाए? करेक्ट।
इधर हिलरी क्लिंटन आई, यहाँ पर बहुत अच्छा बंदा था, वो भी गोरा था, और पीटर अर्बन, हमने प्रोजेक्ट बना के दिया, ही अप्रूव्ड, और उसने पैसे भी सेंक्शन करा लिए थे डीसी, वाशिंगटन डीसी से। रहमान मलिक साहब ने उसको किस तरह सपोर्टाज किया, वो एक अलग कभी हम प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। वो पीटर अर्बन का फैमिली वीज़ा कैंसिल कर दिया ताकि यहाँ से जाए, क्योंकि वो सेंक्शन हो चुका था पैसा, ये समझे इनको मिल जाएगा, ये खाएंगे और ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। वो मैंने बनाया था वो। उसने कहा ओनली विल व्हेन मिस परवेज विल अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट देन इट विल बी डन। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। उसने क्या बोला जब वो समझ गया इनकी चाल को कि लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, या इनको इस मुझे लिटिगेशन करें, you owe it to the government, you owe it to the people. Yes, people for the you owe it state. to yourself. Yes, state, मैं इस स्टेट की ट्रेजरी से सैलरी लेती हूँ, पेंशन लेती हूँ, मैं इसके लिए सोचूंगी। उस आदमी ने क्या अच्छा काम किया, उसने बोला जी मैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, Just a minute. मैं नहीं रहना चाहता। उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया इंडोनेशिया, वो कंट्री मैनेजर वहाँ का हो गया। ये होती है ऑनेस्टी। बिल्कुल सही, ठीक है, और इनको पैसा भी नहीं दिया उसने खाने के लिए। कैन यू इमेजिन, ये होना चाहिए। उसने बोला जी ये लोग खा जाएंगे, इनका ये रूटीन है, नहीं कैंसिल। मैं वाइट पेपर लिख रही हूँ इलेक्शन कमीशन का, और मैं बताऊंगी कि हम इलेक्शन कमीशन ज़्यादा लोगों को मत बताएं, इसलिए कि फिर आप सबको मालूम है। हाँ, कोई कुछ नहीं। देखिए सर, अगर आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह आपको ये रिस्क देता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रेजरी उसका सोर्स है, ठीक है ना, तो मैं ये करूँगी। हम सब करते हैं, आप करते हैं, अल्लाह का शुक्र है आप करते हैं। अभी तक आपके ऊपर एक फिंगर नहीं रेज होती। मेरे बहुत दुश्मनों ने भी, जो जिसको लोग बोलते हैं बड़ी रिपोर्टर पार्टी होती है, हुई मेरे खिलाफ बहुत की एजेंसीज़ ने, बट मेरे दुश्मनों ने भी लिखा कि देयर इज़ नो सिंगल रिपोर्ट ऑफ करप्शन ऑफ मिस परवेज। वंडरफुल। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्राइड है। तो कोई नहीं करेगा सर। और आपको किसने मार दिया, मुझे किसने मार दिया? करेक्ट। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अगर कुछ लोग भी आपकी और मेरी तरह सोचते हैं तो मेरा ईमान है हम सब, बट हमारी ज़िंदगी में हो जाए, ये मैं चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत टाइम दिया, और आप इतना मैं कहती हूँ अल्लाह करे ज़फ़र हिलाली साहब जैसे हमारे पास 5 बंदे भी हमें मिल जाए ना, तो बहुत बेहतर है, आप फिक्र ना करें, बहुत बेहतर है। 5 नहीं 100 हैं, 100 है, लेकिन उन 100 को आप सामने नहीं आने देते ना सर।